اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب سسٹرز؟ الحمد للہ۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیشہ ٹھیک ٹھاک ایمان کی صحیح حالت میں رکھے، کہ صرف ایمان والی ہم نے موت نہیں مانگنی، ایمان والی صالح اعمال والی زندگی بھی ہم اللہ رب العزت سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل با کردار مسلمان بنائے۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ ہمارا کورس 2 ہے، یعنی QC2، اور یہ ہمارا پہلا پیج ہے جس کا پوائنٹر ہے D، یعنی کہ آج ہم اپنا پہلے پیج کا آخری اشارہ کریں گے۔ تو اس کے ساتھ گرامر میں ہم نے کمزور والے ٹیبل شروع کیے ہیں۔ ہم 2 ٹیبل کر چکے ہیں، وہابہ اور اس کے ساتھ ساتھ وعدہ، اور 2 ہم نے ٹیبل انہی اوزان پر بنا لیے اپنی ورک بک میں۔ اب اس طرح سے جو ٹیبل ہم کرتے جائیں گے، ہماری آیات میں جہاں اس ٹیبل سے ریلیٹ کوئی الفاظ آتے جائیں گے، ہم انہیں بھی آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی ٹیبل میں کیا جگہ بن رہی ہے۔ یہ ہمارا کورس ہے۔ اپنے ہاتھوں پر ہم نے اس طرح سے دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ 5 صفحات پڑھنے ہیں۔ یہ ہمارا جو پہلا پیج ہے، آپ دیکھیے کہ 4 پیج یہ سارے ہدایت سے متعلق ہی ہیں۔ جب ہم اپنے 5ویں پیج پر پہنچیں گے، یہاں پر ہم دیکھیں گے حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہدایت کا موضوع جو ہے، یہ 4 پیجز پر ہم نے اس کو ایک ایک آیت کر کے، کہیں 2 آیات کریں گے، آیت چھوٹی ہوئی تو 3 بھی ہو جاتی ہیں، اس طرح سے کرتے ہم اپنے 4 پیجز پورے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت ہم کر چکے۔ آج کا ہمارا اشارہ ہے متقیوں کی صفات، یعنی کہ یہ متقین کی بات ہو رہی ہے۔ اب جب ہم دوسرا پیج شروع کریں گے، وہاں سے ہم دیکھیں گے کہ انکار کرنے والے کس کس طرح سے جھٹلاتے ہیں۔ جانتے وہ ہیں کہ یہ حق ہے، سچ، بالکل باطل کے بالکل اپوزٹ حق، حق بات ہے۔ کیسا حق؟ جس نے آ کر باطل کو مٹا دیا۔ اس کے باوجود منافقین کیا کرتے تھے؟ یہ شک پیدا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ اپنے دوسرے پیج پر ان کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل مزید پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے کیا جی؟ اچھا جی، آج کا یہ ہمارا اشارہ شروع ہو رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ زینہ سے، یعنی کہ اب یہاں پر بات شروع ہو گئی۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ کتاب ہے متقین کے لیے، یا پچھلے جو ہوتے نا پیج ان کے ساتھ اشارے اس طرح سے بھی ریلیٹ کر سکتے، سمجھ آتی رہتی، وہ ایک چین بن جاتی ہے نا۔ متقین کی بات، اب ان متقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو، یعنی کہ اب آگے جو صفات آئیں گی یہ متقین کی صفات ہوں گی۔ اچھا جی، قرآن مجید جو ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب یہ انشاءاللہ جو ہم صفات پڑھیں گے یہ متقین کی ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ نے اپنی انگلیوں پہ اس کو اس طرح سے یاد کر لینا۔ میں بار بار یہ آپ کو ریمائنڈ بھی کرواتی رہوں گی کہ جو پوائنٹس میں بات بتائی جائے، جیسے یہاں پر 5 پوائنٹ بتائے گئے ہیں، وہ ہم اس سے بھی ریلیٹ کر لیں گے جو ہماری آیات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ترجمہ، خاص طور پر اردو ترجمہ جو ہمیں عام سادہ الفاظ میں بتایا جاتا ہے، اس سے بھی ہمیں بڑے ہنٹ مل جاتے ہیں کہ کیسے بات بتائی جا رہی ہے۔ پھر اس وجہ سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جب ہمیں ترجمے، خاص طور پر جو الفاظ اردو اور عربی کے ملتے جلتے ہیں، وہ آیات بھی یاد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اچھا جی، پہلی صفت ہے وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، قرآن مجید اور اس سے پہلے نازل کردہ آسمانی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
कैसा यकीन, यानी कि यौमुद्दीन पर ऐसा यकीन कि अपना हर प्लान इस हिसाब से बनाना है कि मैं इसके लिए रोज़े महशर आखिरत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे जवाब दे हूँ। इन 5 सिफात वालों को हिदायत मिलेगी और कामयाबी भी। यहाँ हमें बताया जा रहा है कि किसी सतर में आप देखें 2 अल्फाज नए हैं, 3 है, 1 है, 2, 1। अच्छा जी, अब इसमें से भी बहुत से अल्फाज हमें उर्दू से मिलते-जुलते लगते हैं, वो इस वजह से भी याद हो जाते हैं। और कुछ जो फ़िक्रे हाइलाइट किए गए ना, जैसे आप देखें, अब एक फ़िक्रा है युमिनूना बिल गैब, ठीक है? इसी तरह से वो युकीमून अस्सलाता, ये दूसरा। अब इसको अगर इसी तरह से याद कर लेंगे ना, युमिनूना बिल गैब ये एक सिफत होगी, व युकीमून अस्सला जो नमाज कायम करते हैं। इसके आगे रोज़कना, उर्दू में भी हमें रिज़्क का पता है, तो अब ये होगा कि रोज़कना के साथ यूनफिकून का माना हमें याद हो जाएगा अगर हम इसको फ्रेज फ्रेज की तरह से याद कर लेंगे। ठीक हो गया। इसको इसलिए हाईलाइट किया जाता है कि जो अक्सर जैसे हम इंशाअल्लाह वगैरह कहते हैं, इससे ये होता है कि हमें तीनों तीनों अल्फाज के अच्छे अच्छे से माना याद हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके जल्दी याद भी आ जाते हैं। और वैसे भी हमें दो किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, एक हो तो हमारी वोकेबलरी इतनी अच्छी हो कि हमें अल्फाज का तर्जमा जल्दी जल्दी से याद आए, और एक है इसकी ग्रामर। और ये जो हमारा कोर्स है आओ कुरान समझे आसान तरीके से, इसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना, ठीक है? जो सिस्टर जिनको लगता है कि मुझे अभी समझ नहीं आ रही, तो ज़रूर क्लास में भी रोका करें, ग्रुप में भी सवाल किया करें। टीपीआई हमारी मदद करती है ना सिर्फ हमारे अफ़ाल समझने में, बल्कि हमारे होमवर्क करने में, हमारे क्विज़ेज़ में, और इसी तरह से जो असाइनमेंट्स वगैरह आती हैं, वहाँ हमें बहुत सी हेल्प मिल जाती है। सब मिलकर कहा करें अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये बड़ा अल्लाह ताला का करम है कि हम यहाँ बैठे अल्लाह ताला का ज़िक्र कैसे कर रहे हैं कि कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखते हैं तर्जुमा और शरह, और ये भी साथ-साथ देख लेंगे कि जब हम रमा तर्जुमा करते हैं उसमें कुछ अल्फाज ख़ास तौर पर जो हमने ग्रामर में पहले QC1 में हम जो जो टेबल करके आए, जैसे हरूफ के साथ किए थे। जैसे आप समझ लें बिल्लाही, हमने पढ़ा कि दो जगह पर आया। आऊज़ु बिल्लाह में तर्जुमा थोड़ा चेंज हो गया, बिस्मिल्लाह में हमने थोड़ा सा तर्जुमा चेंज किया था। और हमने जब बा और फा फी इस तरह के जब हमने हरूफ किए थे, उनके तर्जुमे कुछ हमने थोड़े थोड़े से चेंज भी पढ़े थे। तो अब ये है कि जो रमा तर्जुमा जब किया जाता है तब थोड़ा सा फ़र्क भी आ जाता है, क्योंकि उर्दू की भी कुछ मजबूरी है कि इस तरह से अगर हरफ जर हम उस तरह यूज़ करेंगे तो वो माना पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। अभी आज हम यहाँ पर बिल गैब को भी देखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर पहले अपनी तिलावत कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون। जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और उससे जो हमने उनको रिज्क दिया वो खर्च करते हैं। अल्लाजीना, वो लोग जो हमने पढ़ा ना, वो जो, तो आप इसके साथ एक लगा सकते हैं वो भी। इसका तर्जुमा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो, ठीक है, वो जो लोग या वो लोग जो युमिनूना। अच्छा जी, अगर टेबल नहीं भी किया हुआ ना युमिनूना का, तो क्या चीज़ हमें पता चल रही है, यहाँ पर नून भी है और एक या भी नजर आ रही है। कुछ हमने जो मुदारे में से हमने निशानियां देखी थी, उसमें हमने कहा था कि जो अलामत मुदारे है वो या है। थोड़ी सी तब्दीली हमें ना पेश की नजर आ रही है, तो इंशाल्लाह इस तरह के अफ़ाल हमने QC3 में कर लेने हैं। लेकिन हमें समझ आ रही है ईमान लाते हैं या लाएंगे, तर्जुमे से बहुत हेल्प मिलती है। हमें पता चल रहा है कि ये काम हो रहा है ना, हाल में हो रहा है या मुस्तकबिल में हो रहा है, क्योंकि हमने दो तर्जुमे पढ़े। वो किस तरह से फिट आते हैं, जो जहाँ पर वैलिड होगा तर्जुमा वो
उसी तरह से लाया जाएगा। यहाँ पर जैसे हाल वाला तर्जुमा है, जो लोग ईमान लाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है बिल गैबी। अब हमने बी का तर्जुमा यहाँ पर किया, ठीक है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा सा माना बदलता जा रहा है, इससे हमें पता चलता है कि ये जो हरूफे जर हैं इनके अलग अलग माना हमें सीखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ एक और चीज हम आगे जाते जाते सीखेंगे, वो ये है कि जैसे अब युमिनूना के साथ बी आ गया, इसको सिलाबी कहते हैं, ठीक है। यानी कि बी की जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुई है, ये माना बन रहा है ईमान लाते हैं पर, ठीक है। अब किस पर? गैब। गैब का लफ्ज हम उर्दू में भी जानते हैं, गैब जो नजर ना आए, ठीक है। गैब पर ईमान लाते हैं। अब युमिनूना की तरह ही, युमिनूना से मिलता जुलता ये ना युकीमूना, तो ये भी हमें पता चल गया कि ये भी मुदारे की बात है, कायम करते हैं। इसको याद रखने के लिए ये उर्दू में जो कायम है, इसको हम हिंट बना सकते हैं, युकीमूना, ठीक है, युकीमूना सलात। अब ये इकट्ठा जो हाईलाइट किया ना सला, आपको उर्दू में अक्सर सुनने को मिलता भी, हमें से अल्फाज से, बहुत से अल्फाज से हम फेमिलियर होते हैं ना, कि अस्सला हमें पता है। जैसे हम सलातु तस्बीह कहते हैं, तो हमें पता है इसका माना नमाज है। जो वह युकीमून अस्सला इकट्ठा याद कर लेंगे तो याद आ जाएगा कि इसका माना था कायम करना, और कायम करते हैं नमाज। अगर टुकड़े देखें तो यहाँ पर वाह अलग होगा, युकीमूना इकट्ठा है, इसमें से हमने कोई भी कुछ भी चीज अलग नहीं करनी। इसी तरह से अस्सलात पूरा एक कलिमा है, ठीक है, अस्सलात। अब ये भी हमें पता चल रहा है कि ये अलिफ लाम वाला है, तो ये इस्म है, ठीक हो गया। इसके बाद है व मिम्मा, व मिन मा, यानी कि ये दो टुकड़े बनेंगे, ठीक है। एक टुकड़ा है व और एक है मिन मा, ठीक हो गया। अरबी में तजवीद के रूल के मुताबिक नून साकिन के बाद जब मीम आता है तो उसे मुकम्मल मीम के अंदर मर्ज कर दिया जाता है। तो वह मिम्मा इस तरह से ये हुआ कि यहाँ पर तशदीद आ गई, मर्ज होने की वजह से ये मिम बन गया, ठीक है, मिम, मिम। और फिर इसके आगे एक माँ, पहला मीम साकिन, दूसरा मुतहर्रिक, तो बन गया मिम माँ। उससे और उससे जो, ठीक है, और उससे जो रज़क़नाहुम, रज़क़ना। अच्छा जी, अब ये रज़क़ना किस तरह से है? जिस जिस तरह हमने कहा है नसरना, ठीक है। अब इसे हमें ये पता चल रहा है कि नसरना की तरह मैंने कहा है, तो ये है बाब नासौरा से, यानी कि बाब नून से। हमने खौला का किया था, आबादा किया था, ठीक है। इसी तरह से रोजा का यरजुकु, उर्जुक, राजिक, मरजुक और रिज्क, ठीक है। रज़क़ना हमने रिज्क दिया उन्हें, ठीक है। ये हम इशारे भी साथ साथ देखा करेंगे, टुकड़े भी देख लेंगे, साथ साथ हम इनके इशारे भी, ठीक है। रज़क़ना हुम, और हम और उससे जो हमने रिस्क दिया उन्हें, वो क्या करते हैं? युनफिकूना। अच्छा जी, आ, युनफिकूना को आप किस तरह से याद रख सकते हैं? नफक उर्दू में यूज होता है ना, इन्फाक भी यूज होता है उर्दू में। तो कुछ इस तरह से हम उर्दू के अल्फाज की मदद लेंगे, कुछ देखेंगे कि रौज़क ना हम रिज्क दिया हमने, इसके आगे क्या बात हो सकती है? वो खर्च करते हैं। यहाँ पर एक और चीज हमें समझ आई कि ये भी फेल है, और ये फेल मुदारे है, और ये कहाँ पर आएगा? जमा का सीगा है। हमने देखा कि इसमें निशानी आ रही है मुदारे की, या और नून पर खत्म हो रहा है, जमा की बात है। कुछ वैसे भी हम पीछे भी देखें तो अल्लाह जीना ज्यादा लोगों की, मुत्तकीन की बात हो रही है, जो लोग ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज, और उससे जो हमने रिस्क दिया, ये बहुत अहम बात है।
یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہر چیز اللہ رب العزت کی، تو ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ بہترین چیز دی جائے۔ اپنی چیزوں میں سے جو فالتو اور ختم ایسی چیزیں نہیں، جو چیز بہترین ہو وہی خرچ کی جائے۔ بچتی بھی وہی ہے جو ہم خرچ کر لیتے ہیں دنیا میں، وہ ختم ہو جاتی، جو ہم دے دیتے ہیں، جو ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں وہی ہمارے کام آئے گی۔ تو یہ نہیں کرنا کہ جو چیز دیتے وقت ہم ان باتوں کا خیال نہ رکھیں جو ہم اپنے لیے لیتے وقت خیال رکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ پہلی صفت ہے۔ کیا ہے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، چونکہ ہمارے حواس خمسہ محدود ہیں، اسی لیے پوری حقیقت کو سمجھنا اور جاننا ہمارے لیے مشکل ہے۔ کبھی کبھی خود اپنے اوپر بھی غور کریں نا، تو بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی نا، کیونکہ ہماری سوچ کا دائرہ محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پردے میں رکھی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے تو مشکل ہے۔ اور سب سے پہلے یہ کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر ایمان لا رہے ہیں، اسی طرح تقدیر پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہم نبیوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں نا۔ تو یہ پہلی صفت ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کہ اب اس میں ہم وہ دیکھتے ہیں نا، اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت یعنی کہ جنت اور جہنم، اللہ سے ملاقات وغیرہ، اسی طرح اچھی بری تقدیر۔ کون سی دعا یاد آئی آپ کو یہاں پہ؟ یہ ایسی عربی میں ترجمہ بھی ہم نے یاد کیا ہوا ہے، بچپن میں تو خاص طور پہ ہمیں یاد کروایا جاتا تھا۔ کسی کو یاد نہیں ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیک وما آمن انزل الرسول بما نہیں، انزل ایک اور بھی تو چیز ہے ہم یاد کرتے ہیں بچپن جب ہم نماز إنا نماز آمنا بالله مترجم، وملائكته وكتبه ورسله ہاں، اس کو ہم کیا تقدیر کہتے ہیں؟ تقدیر پر ایمان لانا اس مجمل میں ہے۔ امنت بالله وملائکتی وکتبی آمنتو ورسولی باللہ والیوم والی، ٹھیک الآخر ہے، ایمان مفصل اور ایک مجمل ہوتی۔ آج میرا یہ ٹیڑھا ٹیڑھا سے کیوں لکھا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے مجمل اور ایک ہوتی ہے مفصل، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں ہم نے عربی میں پڑھی ہوئی ہیں، بچپن میں یاد کرائی جاتی ہے تو اکثر وہ الفاظ تو یاد ہوتے ہیں، معنی اس کے یاد نہیں ہوتے، لیکن یہ دیکھیں ملا کے دیکھیے گا آپ، سارا پورا ترجمہ یہ وہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان مفصل۔ ایمان مفسر۔ دوسری صفہ کیا ہے کہ دراصل نماز قائم کرنا تقوی کو بڑھاتا ہے، نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اور بالفرض دیکھیں اگر نہیں روک رہی تو ہماری نماز میں کمی ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں وہ بڑے پکے اور سچے ہیں۔ تو پھر وہاں پر سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے اپنی نماز کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نماز قائم کرنی ہے، نماز قائم کرنے کا مطلب فجر پڑھی ہے، ظہر کی فکر کرنی ہے، ظہر پڑھی ہے، عصر کی فکر، خاص طور پر جب گہما گہمی کے دن ہوں، کوئی شادیاں ہوں یا کوئی بھی مواقع ہوں، کچھ بھی ہو، بیماری کے عالم میں بھی، تب اکثر ہماری سب سے پہلے جو چیز ادھر ادھر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نماز۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ان خاص طور پر خاص خاص لمحوں میں تو ضرور ضرور نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ نماز قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی دل میں بڑھتا ہے، تقوی کو بڑھاتا ہے، غیب پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے کچھ لیڈر وغیرہ کو دیکھیں جو قرآن مجید کی آیات کی عجیب و غریب تشریح بیان کر دیتے ہیں نا، وہ کہتے تھے نماز قائم کرنے کی بات کی ہے، نماز پڑھنے کی بات نہیں، تو ایسی باتوں کو اگنور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو نماز پڑھنی ہی ہے، نماز پہلا سوال ہے۔ تو میں اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ نماز پڑھا کرو، پہلے ہی سوال میں فیل نہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ سب کو نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سمیت، کہ وہ پابندی سے نماز نہیں پڑھتے، اس لیے ان پر ہدایت کی راہ نہیں کھلتی۔ یعنی کہ ہدایت کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ جو اعمال ہیں یہ بھی بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری صرف وہ صرف زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، کیونکہ زکوٰۃ تو ایک اللہ تعالیٰ نے فرض کر دی صاحب استطاعت پر، بلکہ اس کے علاوہ بھی خرچ کرتے ہیں، مثلا خود پر، اپنے والدین پر، بیوی بچوں پر اور غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات ہے، دیکھیں خرچ اپنے گھر والوں پہ کرنا ہے اور اس کو بہترین صدقہ کہا گیا، اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو اسی طرح سے مسجد میں، مدرسوں میں تعلیم اور دین کے دعوت کے کام وغیرہ بھی خرچ میں ہی آ جاتے ہیں. جیسے الحمدللہ سے ہم نے سیکھا، آگے سکھا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق ہی دیا ہوا علم کی صورت میں. تو اس کو جتنا ہم خرچ کریں گے یہ اپنا بھی اتنا ہی بڑھے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی. تو انشاءاللہ سب اس بات پر جب ایسا کوئی ہم اپنے لیے پیغام دیکھیں تو نیت کیا کریں کہ انشاءاللہ میں نے بھی انشاءاللہ جو سیکھا ہے آگے سکھانا ہے. اچھا جی، یاد رکھیں کہ ہدایت کا راستہ جیب سے ہو کر جاتا ہے. متقین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ مال اللہ ہی کا تحفہ ہے، اور مال اور بنون، آپ نے جب سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں اس میں پڑھا بھی ہوگا کہ یہ کم ہو یا زیادہ ہو، دونوں طرح آزمائش ہی ہے. اسی لیے جو مال، خاص طور پر مال کی بات یہاں بتائی گئی کہ اللہ کا تحفہ ہے، اسی لیے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کنجوسی نہیں کرتے تب. اچھا جی، الحمدللہ یہاں پر ہماری یہ والی آیت ایک کمپلیٹ ہوئی. اب اگلی آیت دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر وہ سب یقین رکھتے ہیں. اب یہ ساری وہ ایمان مفصل والی آ گئی نا باتیں. والذین، اور اب یہاں پر واؤ کو الگ کر لیں گے، دو ٹکڑے بن جائیں گے، واؤ اور الذین. اور وہ لوگ جو یؤمنون، ہم پیچھے جیسے دیکھ کے آئے بالکل اسی طرح سے ہم کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. بی ماں، اب یہاں پر بی اور ماں یہ دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بی پلس ماں، اس پر جو. انزلہ کو ابھی آپ اس طرح سے دیکھیں، نازل کیا گیا. اس کو ہم انشاءاللہ تھوڑا سا اپنے QC2 کے اینڈ پر بھی دیکھیں گے، اور تھوڑا تھوڑا سا ہم پڑھ کے آئے ہیں QC1 میں. کہاں پر؟ جب ہم نے کہا تھا کہ لم یلد ولم یولد، تو قرآن پاک میں کچھ افعال مجہول یعنی کہ پیسو وائز شکل میں آئے ہیں. اب اس طرح کے افعال ہم نے انشاءاللہ جلدی ہی سیکھ لینے. مجہول کے بارے میں یعنی کہ پیسو وائز میں ہم جو تھوڑا تھوڑا سا سیکھیں گے ہم QC2 کے اینڈ پہ سیکھ لیں گے. اور انزلہ جیسے افعال ہم دیکھیں گے QC3 میں. اس کے بعد QC4 میں جا کے مزید پیسو وائز کے بارے میں پڑھیں گے. پھر آپ یہ جب دوبارہ سے آیات پڑھا کریں گے نا تو بہت مزہ آئے گا پڑھنے کا، پھر ہمیں ہر چیز کی سمجھ آنے لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. نازل کیا گیا الیہ کا، ہم پورا ٹیبل کر کے الیہ الیہم الیہ کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا. من کا ہم نے منہ والا پورا ٹیبل کیا ہے. قبلک، قبل، یہ جو قبل ہوتا ہے نا، قبل یہ وہی ہے قبل، اور اس کے ساتھ کا جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ یہ دو ٹکڑے ان چیزوں میں جہاں پر ٹکڑے بنیں گے ہم بنائیں گے. اور جو ہم زبردستی ٹکڑے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس میں کہتی ہوں تو کیما ہو جاتا ہے. تو کاک والا جو ہوتا ہے نا، جیسے اب تبارک ہے، تو اس طرح کے الفاظ پہ ذرا تھوڑا سا زیادہ ہم نے غور کرنا ہے، کیونکہ ہمیشہ جو کا ہے وہ نہ تو الگ ہوگا نہ ہمیشہ یہ جڑا ہوا ہوگا. تو قبل پلس کا یہاں پر دو ٹکڑے بنیں گے. وہ بالآخرت، آخرت کا لفظ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، وا بی اور الآخرت. ٹھیک ہے. یہ تین ٹکڑے ہم نے بنا لیے. اس کے بعد ہے ہم یوقینون. یوقینون یقین رکھتے ہیں. اچھا جی، یوقینون، یقین سے ویسے بھی یاد رکھا جا سکتا ہے، اس کا پورا ہم نے ٹیبل بھی کر لینا. یقین کیسا یقین؟ کہ جس میں کس طرح کا کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہ رہے. ہم یوقینون. اچھا، یوقینون کا معنی جو نا یہ بھی ہے وہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم کا معنی بھی وہ ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو لفظ با لفظ ترجمہ کریں نا تو اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہے ہم. اچھا جی، تھوڑا یہ پرابلم کر رہا، ہم سمپل پین لے لیتے. اچھا جی، یہ ہے ہم. اس کا بھی معنی اگر ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں تو وہ. اس کے بعد ہم دیکھیں وہ سب یقین رکھتے ہیں. تو قرآن مجید میں تاکید کے لیے، اور جو وہی والا جو ترجمہ نا، وہی لوگ ہیں جو
सब यकीन रखते हैं, यानी कि वही वही वाला भी इसमें माना यूज कर लिया जाता है। तो ये जब हम दोबारा से आए तो ये ताकीद के लिए, सिर्फ बात ऐसे भी हो सकती थी वबिल आखिराती युकिनूना, तब भी तर्जुमा यही बनता। ठीक है। पिछली किताबों जैसे तौरात, इंजील, एक कुरान है, एक और कौन सी है मुझे बताइए। और चार मशहूर और किताबें हैं। इंजील, जबूर ज़बूर, हाँ इंजील जी और बिल्कुल, कुरान। और कुरान मजीद। तौरात अच्छा जी, जबूर ये सारी इंजील। किताबों पर, कुरान पर और हदीस पर ईमान लाना, ये नहीं कह सकते कि हम कुरान पर तो यकीन रखते हैं, पिछली किताबों को हम नहीं माने, क्योंकि दरअसल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए, वो सब अल्लाह का पैगाम लेके आए थे, एक ही पैगाम था, सब के सब इस्लाम लेकर आए थे। किसी ने अलग से अपना कोई दीन इजाद नहीं किया था। ईमान का ये हिस्सा नबूवत के झूठे दावेदारों और उनके मानने वालों के लिए तमाम दरवाजों को बंद कर देता है। अब जैसे कादियानी और अहमदी वगैरह, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे ऐसे शुरूर से, ऐसे फितनों से। इसीलिए ये कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ए मोहम्मद जो आपके बाद नाजिल हुआ हम उस पर भी, यानी कि जो मुत्तकीन है यकीन रखते हैं, बस यहाँ तक बात खत्म कर दी गई कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले आए हुए अंबिया पर यकीन रखते हैं। ठीक है क्या जी। इन सिफात को हमने, मुत्तकीन की सिफात को जब पढ़ना है, जब हमने इन चीज़ों को समझना है, तो क्या कोशिश होनी चाहिए कि हमारे अंदर भी ये सिफात आए। और जब हम कुरान के अहल, यानी कि अहलुल कुरान, कुरान वाले हो जाते हैं, कुरान को समझने वाले हो जाते हैं, तो क्या कोशिश करनी है कि हमारा अमल ऐसा हो कि हमें अपने मुंह से ना बताना पड़े कि हम कुरान सीख रहे हैं, हम मुसलमान हैं। हमारा अमल, हमारा किरदार इस बात की गवाही दे। अगर किसी सिस्टर को बहुत गुस्सा आता है, तो कोशिश करनी है अपने आप को ज़रा थोड़ा सा, जब जब गुस्सा आए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े। बच्चों पर ही अक्सर आ जाता है, इधर उधर की बात छोड़ें, बच्चों पर ही अक्सर गुस्सा आ जाता है। तो आऊज़ की कोशिश करनी। और कहते हैं ये जो लम्हात होते हैं, इसमें मुंह से निकली हुई दुआएं कबूल होती हैं। तो खुदा न खास्ता जो मुंह से अगर कोई बुरी बात निकले, तो उसके भी कबूल होने के खदशात होते हैं। तो क्या करना, कोशिश करनी। और ये कैसे होगा, ये कोशिश करने से होगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये बताया गया है कि ये एक आयत, जैसे मैंने कल भी कहा था ना कि मुसहफ की जो, यानी कि कुछ चार आयत एक पेज तक होती है, और दूसरा जो पेज शुरू होता है ना, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम से। अब जो मेरे पास मुसहफ है, ये अरबी मुसहफ है, उसमें ये कि पांचों की पांचों आयत एक ही पेज पर थी। इसलिए मैं कल थोड़ा सा इसमें एकदम थोड़ा हो गई थी, कंफ्यूज हो गई थी, कि मैंने तो देखा था कि उलाइका से शुरू होता है जो पारा, पहला पारा। तो ये वाली जो आयत है, ये मजमून असल में वही एक चल रहा, मुत्तकीन की सिफात चल रही, इसलिए इसको इसमें शामिल कर लिया गया। वो अच्छा जी, हाँ इसकी तिलावत हमने की नहीं पहले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वो लोग हिदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और वही लोग फलाह पाने वाले हैं। यहाँ भी देखें ताकीद है, उलाइका का माना भी वो और हुम का माना भी वो। ठीक है। अल मुफलिहून, ये हम देखते हैं कि ये जो हमने किए थे इस्मुल फाइल, ठीक है, ये किस तरह का, ये थोड़ा चेंज है। ये वाले हमने इंशाल्लाह अपने QC3 में कर लेने, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो जब मैं ये बात करूँ QC3 में करना है, 4 में करना, तो अपने आप को इस शौक और जज्बे को बढ़ाया करें कि हमने इंशाल्लाह 3 भी करना है, 4 भी, 5 भी, 6 भी। हम ये सारे कोर्सेज करके, सारे लेवल करके QC7 में पहुंचेंगे, जहां पर हम पूरा कुरान समझेंगे। ठीक है क्या जी। उलाई का हमने QC1 में सीखा हुआ है, हमने कहा था उलाई का दूर का इशारा वो लोग। ठीक है। अला पर ये हमारा बिल्कुल समझा हुआ। ठीक है। अला, क्योंकि हमने अस्सलामु अलैकुम इसका फ्रेज याद किया था, और अला पर ये भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह से पता है। हुदन, हुदन का हमने पूरा हदा वाला टेबल कर लेना, फिर हम देखेंगे हुदन हमारे टेबल में कहाँ पर फिट हो रहा है। ठीक है। हुदन हिदायत, अभी मिलते जुलते अल्फाज से इसको याद रखेंगे। मिन रब्बी और रब्बिहिम। ठीक है। मिन रब्बी रब्बिहिम, मिन से, रब्बिहिम अपने रब की तरफ से। ठीक है।
अब इसके बाद है वा को अलग करेंगे, उलाई का, उसके बाद हम और अल मुफलिहून। अब यहाँ पर ये सारे एक एक पूरा पूरा कलमा था, एक एक पूरा पूरा लफ्ज था, तो इसीलिए हमें यहाँ पर किसी भी चीज के अलग से टुकड़े नहीं बनाने पड़े, सिर्फ रब्बिहिम, ठीक है। ये एक अलग इसको करिएगा। ऐसे लोग अपने रब की जानिब से हिदायत पर हैं। हकीकत यह है कि हिदायत का मिलना अल्लाह ही की तरफ से है, और ये सबसे अहम तोहफा है। इंसान चाहे, बहुत शदीद भी तड़प कर भी चाहे, तो जब तक अल्लाह की चाहत बीच में शामिल नहीं होगी कुछ हासिल नहीं होगा। तो हिदायत भी अल्लाह ताला के अता करने से मिलती है। तो हिदायत की जरूर दुआ मांगते रहना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यानी कि यहाँ पर हमने वो चार लोग जिनको अल्लाह ताला ने, जिन पर दर्जा बदर्जा अपनी रहमतें नाजिल की, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, स्वालिहीन। तो हमने क्या करना, स्वालिहीन में शामिल होना। जब हम ये दुआ करेंगे ना, इहदिन सिरातल मुस्तकीम, तो उस सारी जो हमने मुख्तसर सी शरह पढ़ी थी उसको जहन में लाया करें। ये लोग कौन थे? जो अल्लाह ताला की जानिब से हिदायत पर थे। तो अपने लिए हमेशा हमेशा हिदायत की दुआ करनी है। मुत्तकीन दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी कामयाब होंगे। अगर ज़ाहरी तौर पर कहीं, यानी कि मुश्किलात का सामना, वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी करना पड़ा था, मसाइब आ जाते हैं हर तरह के। ये नहीं कि जो सिर्फ मुसलमान होंगे उनके लिए मसाइल मसाइब होंगे, हर इंसान पर आ सकते हैं। लेकिन जो उखरवी कामयाबी है, और दुनिया में भी जो मसलहतन जो हमें लग रहा होता है कि ये हमारे लिए बड़ी आजमाइशें हैं, एक टाइम आता हम अपने मुंह से इकरार कर लेते हैं कि ये हमारे ही हक में चीज़ें बेहतर थी। मुत्तकीन दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। और जो कि इन 5 सिफात में जितना ज़्यादा मजबूत होगा वो उतनी ही ज़्यादा हिदायत हासिल करेगा और आला कामयाबी हासिल करेगा। जैसे दुनियावी जो होते हैं हमारे मकासद, उसमें भी कोशिश होती है ना कि हम बेहतरीन करें। तो ये जो सिफात हैं, ये क्यों ना हम इसमें आला से आला बढ़ने की, एक दूसरे से जो सबकत हमने हजरत उकाशा से सीखा है कि नेकियों में सबकत लेके जानी है, तो ये हमने कोशिश करते रहना है। मिलकर के ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आयत कवर हुई। अब हम असबाक दुआ प्लान देखते हैं। ये 5 सिफात हमने बार बार देखा, बार बार इसका जिक्र किया। इसको आपने ईमान मुफस्सल वहां से याद कर लीजिए, या एक एक आयत को एक एक सिफत के साथ रिलेट करके, एरो कर करके भी इसको याद किया जा सकता है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है। यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी साथ हम दुआएं भी देख रहे हैं। अच्छा जी, मतलूबा आदात को अपनाने में हमारी मदद फरमा ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। हम तुझसे दुआ करते हैं, रब्बी जालनी मुकीम अस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। और ये जो एक स्वली नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये वो जैसे कुछ कुरान पाक में ऐसे भी लिखा होता है ना, तो ये इसका हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये जो होते हैं वक्फ के मुकामात वगैरह, ये उनमें से है, ठीक है। कुछ हमें इस तरह के साइन नजर आते हैं, ठीक है। कहाँ तो भी नजर आ जाता है, कहीं ला नजर आ जाता है, जीम नजर आ जाता है, ठीक है। तो ये उसी तरह से सवाली है। ये दुआ हम अक्सर और बेशतर हम अपनी, बल्कि पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, एशिया में खास तौर पर नमाज के बाद यही दुआ ही सिखाई जाती है। आसान दुआ है शायद, इसलिए इसको ज्यादातर सिखा दी जाती है। तो मजीद भी कोशिश किया करें, नमाज की किताबें देखा करें, उसमें बहुत सी अच्छी अच्छी और मजीद दुआएं भी होती हैं जो हम दुरूद शरीफ के बाद पढ़ सकते हैं, मिलाकर भी पढ़ सकते हैं। ये दुआ याद है सबको, ये पढ़े, बहुत प्यारी दुआ है ये भी। इसके साथ और भी मिला ली, और खास तौर पर वो मिला लिया करें, रब्बाना आतीना। अच्छा जी, आसान प्लान क्या है? इंशाल्लाह मैं हमेशा कुरान से हिदायत हासिल करूंगी, और इसको हासिल करने में अपना वक्त भी लगाऊंगी। ऐसे नहीं होगा जैसे कि मैं दुआ करती रहूं और कहूं कि मुझे बैठे बैठाए सब कुछ हासिल हो। तो ऐसा नहीं होगा, हाथ पांव हिलाने पड़ेंगे। एक पानी का गिलास भी पीना हो तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तो हिदायत के लिए तो अपने लिए कोशिश करनी ही करनी है। एक दफा जरा मिलकर सब माइक ऑन करके कहिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। 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 ये जब तक आपका इंशाल्लाह QC5 होगा, आपको अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कहने की
बहुत अच्छी सी आदत हो जाएगी। ये जो मेरा पिछला बैच गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह से, उन लोगों को मैंने अच्छी तरह सिखा दिया था। वैसे भी पढ़ते हैं हम, शुक्र अल्लाह ताला का करते हैं, लेकिन मुंह से जब इकरार करते हैं ना, किसी के सामने अपनी मोहब्बत का भी इजहार करें, छोटा सा बच्चा भी हो उसको जरा प्यार से बुलाएं तो उसे कितनी खुशी होती है। हम हमें हमारे बच्चे जब प्यार से बुलाएं तो कितना हमें अच्छा महसूस होता है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से सारी कायनात का मालिक खालिक राजिक है, तो उसके साथ जब हम उसका शुक्र अदा करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए ही बेहतरी के नए रास्ते खुलेंगे। अस्मा और अफ़ाल को देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर रहते हुए आप खुद ब खुद देख सकते हैं कौन कौन सी अस्मा है। जैसे मैं अल्लाह जीना के बारे में पूछूं, बताते जाएं इस्म जो भी है वो, फिर मैं उसको निशान लगाती जाती हूँ, ठीक है। अल्लाज़ीना इसम है शायद। नहीं, शायद नहीं कहना, ये इस्म ही है। ये इसको हम ठीक कहेंगे ठीक, इस्म इसम है। मौसूल, ठीक है। मैंने आज आपको इसका नाम भी बता दिया। इसको हम इस्म मौसूल कहते हैं, ठीक है। मौसूला भी कुछ लोग कहते हैं, मौसूल भी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद और इसी में यूमी अच्छा, अम, पहले इसके बाद, इसम बता दें सारे। हाँ इस्म बता दें। अच्छा, गोइब, अल गोइब। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सलात। सलात। ठीक हो गया। अस्सलात, जी ठीक भी है। होगा। और वल्लजीना, रिजक, रिजक नहीं होगा इसमें? क्या चीज? रजक ना। अच्छा, होम होगा शायद। हाँ। ये है रिज़्क़ुन और ये है रज़क़ना। हाँ। ओके। ये है हमने रिज्क दिया, हमने रिज्क दिया माजी। और ये है रिज्कुन, इसे आप ले जाएं मस्तर पे। हमने कहा है माजी मुदारे फेल अमर वगैरह ये तीन अफाल की चाबी है, ठीक है। जो हम शुरू करते हैं उसके नीचे फिर पूरे पूरे सीखे कर लेते हैं। उसके बाद तीन अस्मा है, इस्मुल फाइल, इस्मुल मफूल और ये है मस्तर। मस्तर क्या है? मस्तर भी इस्म होगा, तो ये फर्क है ना। ये रिज्कुन हम तो नहीं है ना, रिज्क यानी कि इसमें देखिए फर्क भी है ना, बोलने में भी, इसकी जेर जबर पेश में भी। ये रोजा का, ठीक है, जैसे रोजा का रोजा को रजकता रजक तू रजक तुम रजक ना, ठीक है। हमने रिज्क दिया, इसमें हम को आप कह सकते हैं, बिल्कुल एक सिस्टर ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया। अच्छा, जिसके बाद एक सिस्टर ने वल्लजीना वल्ला जीना में अल्लाह जीना को कहें, ठीक है, वाव तो हर्फ हो जाएगा। बर्फ और हो ये जो जाएगा। माँ अब है इसको भी फिलहाल छोड़ दें, इसमें से भी कुछ आप पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह। कुछ आपको इस उलाइक, अस्मा मिलेंगे और कुछ अब यहाँ पर, ता। हाँ। ठीक है। इसके बाद ये दोनों ही अस्मा हैं, कब्ल, ठीक है, ये भी इसम है। ये भी एक तरह अच्छा। के अलग से इसम अस्मा होते होते ही अस्मा ही है। अच्छा, हमने ना, आप इसको बड़े शौक से लिया करें कि हमने इनको अलग अलग भी देखना है। जैसे आज हमने देखा कि इसम मौसूल कहते हैं अल्लाह जिना को, हाजा वगैरह जो होते हैं इसम इशारा होती है, तो ये इस तरह के जो कब्ल वगैरह है ना, इनका भी एक नाम होता है। इंशाल्लाह सब कुछ सीख लेना है। अच्छा जी, यहाँ पर, आखिरात, ठीक है, अल आखिरात, ठीक हो गया जी। अब उलाइक, ठीक है, दन, ठीक है, रब्बी, रब्बी भी और हिम भी। ठीक हो गया। ये भी, ये भी, ये भी, बाकी सारे अस्मा है, क्योंकि सारे इस तरह से स्लाइड में नहीं दिए हुए थे, कुछ हमने पहले से पढ़े हुए हैं। और जो जोड़ियां जोड़ियां सी जोड़ियां, अच्छा, ये इंशाल्लाह ये भी हम सीखेंगे। जोड़ियां मेरे मुंह से निकल गया, यानी कि इसका मतलब है अभी हमने इंशाल्लाह और बहुत सारी चीजें पढ़नी है। मैंने भी आप लोगों की तरह शुरू किया था, बिल्कुल जैसे कह लें कि जीरो से शुरू किया था। अच्छा जी, सलात, सलावात, ठीक है, ये इसकी जमा हो गई। और ये कैसी जमा है? ये मुकस्सर वाली जमा है, ठीक हो गया। अब है मुफलिह। अगर मुफलिह दिया जाए ना, यानी कि आपको बताया ना जाए कि ये हमने मुफलिहूना दिया या मुफलिहीना मुफलिहन, ठीक है, तो अब क्या करेंगे? मुफलिहूना मुफलिहीना दोनों तरह की बनाएंगे। अगर आपको मुफलिहुन दे दिया तो सिर्फ फिर वाव नून, ठीक है। मुफलिहिन मुफलिहन इनमें से हो तो फिर मुफलिहीना वाला आपका जवाब ही है। मैं आपको होमवर्क के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो जब आपने इसकी मिलानी होती है ना जमा, तो देखा करें कि कोई खास आपको हरकत तो नहीं लगा कर दी गई लफ्ज पर, ठीक है। तो इस तरह से आप दो दो जो जमा वाव नून और या नून वाली बनाते हैं। अब आप अफाल को देख लेते हैं। और रोजा का मैंने वैसे पहले भी इसकी शिजाबियां पढ़ी थी। रोजा का यरजुकु, उर्जुक, राजिक, मरजूक और रिज्कुन, ठीक है। और ये बाब है नौसवारा, ठीक है, ये जो पेश होती है ना इससे में पता चल जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना हमारा एक टेबल है तो सही, हदा वाला भी हमने किया नहीं है, तो जब हम कर लेंगे फिर हम उन टेबल्स को भी इसमें साथ जोड़ लिया करेंगे।
اچھا جی، الحمدللہ سے آج ہماری کلاس ذرا تھوڑی اچھی اچھی جا رہی ہے، ٹائم پر انشاءاللہ ہو جائے گی کور بھی۔ اچھا جی، آج ہم نے دیکھنا ہے قولا کا ٹیبل اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نون لکھا ہوا جس کا معنی ہے کہ باب نوسورا۔ قرآن مجید میں بہت سارے افعال آپ کو باب نوسورا پر ہی نظر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو باب نوسورا بہت زیادہ آپ نے اچھی سی پریکٹس کر لینی ہے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمزور حروف، اب یہ جب آپ کے سامنے واؤ یا اور الف آئے نا، تب ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، تب ہم نے اس کو فعل ماضی میں سے دیکھنا تھا۔ ایک منٹ جو مجھے دیجیے گا، میں ذرا اسے دوبارہ سے شیئر کرتی ہوں۔ جی آپ کو شو ہوگی دوبارہ سے؟ اب یہ جی ہوگی. جی الحمدللہ، جب ہم نے واؤ یا اور الف کی بات دیکھنی ہے نا، تو اس کو ہم نے کہاں ڈھونڈنا ہے، اس کو ہم نے فعل ماضی میں ڈھونڈنا ہے، ٹھیک ہے؟ QC2 میں تھوڑے سے چیلنجز ہیں QC1 کی نسبت۔ یہاں پر حروف مادہ کی بات شروع کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ حروف مادہ کی بات کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ماضی کے پہلے سیغے پر بھی غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ جو بات ہے یہ ہے آپ کے ماضی کے پہلے سیغے کی، اس کے بعد کیونکہ جو پہلا سیغہ، پہلی چابی ہمیں مل گئی ماضی کی، تو اس کے حساب سے ہم آگے پورا ٹیبل کور کرتے ہیں۔ تو ماضی میں واؤ یا اور الف نظر آئے، یہ بار بار میں کیوں آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ جہاں پر الف آتا ہے نا، وہ پھر روٹ لیٹر کا حصہ نہیں ہو سکتا، وہ حروف مادہ میں سے نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ حروف مادہ جب ہم بنائیں گے، ماضی میں جو الف نظر آئے گا اس کو بدلنا پڑے گا، جیسے آج کا ٹیبل ہے نا، اس میں ہم یہی کام کریں گے۔ اچھا جی، یہ کیوں کہا جاتا ہے ان کو کمزور؟ کیونکہ کمزور یا بیمار آدمی اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے۔ ایک ہنٹ بنا لیا گیا کہ چلیں اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم یہ کہہ لیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ ہے یہاں پر کمزور حرف شروع میں ہے۔ اب جو آج ٹیبل کرنا ہے قولا، اس میں درمیان میں ہے، اب آگے کچھ ٹیبل ہم کریں گے جن کے اینڈ پر ہوگا۔ اور آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاتی ہوں کہ ان تینوں کے الگ الگ نام بھی ہیں، جس میں شروع میں آ جائے کمزور حرف، جس میں درمیان میں آ جائے، جس میں اینڈ پر آ جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی سا بھی ہو سکتا ہے، یہ تینوں میں سے کوئی سا بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جہاں پہلا کمزور ہو، دوسرا کمزور ہو، تیسرا کمزور، ان کے الگ الگ نام بھی ہم نے سیکھنے ہیں انشاءاللہ QC6 میں۔ وہ بھی بہت ضروری نہیں ہے سیکھنے، ہاں آتے ہوں تو اچھی بات ہے، ہم نے اس کو آسان آسان کر کے سیکھنا ہے، یہ ہمیں اسی طرح بھی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ کمزور افعال کے سلسلے میں 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جانا انہوں نے ان ابواب میں سے کسی ایک پر ہے۔ کون سے؟ فتح یفتح، نصر ینصر، ضرب یضرب، سامع یسمع، ٹھیک ہے؟ تو ان 4 میں سے ایک باب پر تو ضرور بالضرور کمزور ہوگا، جو ہم کہا کریں گے کہ یہ مین باب ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو ایک بات ہم کرتے ہیں نا کہ جو کمزور حروف ہیں تھک جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، تو آج یہ جو ہم قولا والا ٹیبل کریں گے اس میں ہم دیکھیں گے بھی، ٹھیک ہے؟ کہ ہم کیوں کہتے ہیں یہ غائب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بدل بھی جاتے ہیں، کہیں کہیں ہمیں ایک دوسرے سے بدلے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اور جو حمزہ ہے نا، حمزہ یہ ذرا لاڈلا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کیا کرتا ہے، یہ اس کا اپنی اس کی مرضی ہے، چاہے یہ واو کی جگہ لے لے، یا کی لے لے، یا یہ الف کی جگہ لے لے، اور بعض دفعہ یہ تھا ان کو کرسی بھی بنا لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ عدل بدل حمزہ جس کے ساتھ چاہے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ٹیم ورک کی طرح کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ہمیں کیا کرنا، ہمیں بھی ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بنانی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، فعل ماضی کے پہلے سیغے میں اب یہ والی جو لائن ہے نا، یہ آج سمجھنے والی ہے، ٹھیک ہے؟ فعل ماضی کے پہلے سیغے میں اگر آپ الف دیکھیں، اچھا جی، یہ ہے فعل ماضی کا پہلا سیغہ، اس میں مجھے بتائیں آپ کو الف نظر آ رہا ہے؟ الف ہے اس میں قولا میں؟ سسٹر ندیم آپ کی آواز تھوڑی کٹ گئی تھی.
अच्छा, हाँ जी, मैं पूछ रही हूँ कि देखें कौला में देखें अलिफ नजर आ रहा है आपको, फेल माजी का ये पहला सीगा है, जी आ रहा है है। ठीक है। और उसके बाद अब लिफ। ये हाँ मैंने इसके बनाने हैं रूट लेटर, ठीक है। अब रूट लेटर बनाने के लिए मैंने इसको फिल नहीं किया। अब ये या तो या की बदली हुई शक्ल है या फिर ये वाव की बदली हुई शक्ल है, ठीक है। अब हमने ये नहीं डिसाइड करना, ये सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका है। हमने सिर्फ समझना है, हमारे लिए इसको आसान किया गया कि इसको हम कैसे आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। या तो इसमें या आएगा या वाव आएगा। अब कौला नजर आ रहा, हमें नहीं पता कि कौला, अब आपको टीचर बताएंगे, टीचर को उनके टीचर्स ने बताया, ग्रामेरियंस ने बताया, ये बात चलते 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 हम तक पहुंची। हम क्या करेंगे, हम इंशाल्लाह ये जो टीचर्स के बनाए हुए रूल्स हैं हम इनको खोल कर जितना आसान हो सकता है आपके लिए लाएंगे, और जितनी आसानी हो सकती है आपके लिए उतनी आसान आसान प्रैक्टिस भी आपके ग्रुप में भेजते रहेंगे, ठीक है। जैसे हमें दा में भी अलिफ नजर आ रहा है, हमें कादा में ज्यादा में भी अलिफ नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी बदलेगा, ये भी अलिफ क्योंकि रूट लेटर का हिस्सा नहीं हो सकता, माजी में होगा, ठीक है। अब आपको ये खोल कर बता दिया जाए गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम सिर्फ सरसरी समझते हैं, ठीक है। इसको जब हमने टेबल देखने फिर हम देखेंगे भी कि ये किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है। कादा में या था, ज्यादा में या था, दा में दा में वाव था, कौला में वाव था। तो ये जो वाव और या है ये हमने नहीं डिसाइड किए, ये इसी तरह से है, हम इनको समझने लगे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पर हमने कौन सी चीज याद रखनी है, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, कौला ज्यादा, इसीलिए दुआ करो हिदायत की, दाआ हदा। अब आप लोग पढ़ें, चाहे आप सब ऑन कर लिया करें माइक, ये जितनी स्पीड में मैंने पढ़ा इतनी स्पीड में सारे पढ़े, फिर एक जैसा भी हो जाएगा। अल्लाह ने अल्लाह देने ने का देने का वादा वादा किया, किया, वहाबा वहबा वादा, वअदा, वहाबा ज्यादा बल्कि दूंगा, बल्कि कहा कहा ज्यादा कौला दूंगा, ज्यादा दूंगा, आला कौला ज्यादा, ज्यादा, इसीलिए दुआ इसलिए करो दुआ हिदायत करो इसलिए की, दुआ करो हिदायत की, हिदायत की, हदा। दाआ दाआ हदा। हदा। अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप ये वाला एक पढ़ते हैं, एक पोएम सी इसको समझ लें, जब आप ये बना के पढ़ते हैं तो आपने 6 तरह के अपने लिए पैटर्न समझ लिए। यानी कि फतहा से हमने सीखा वहाबा, पहला कमजोर टेबल। नौसरा से हम सीखेंगे कौला, सीखेंगे दाआ, सीखेंगे दौराबा से हम वादा, जादा, हदा। अब ये बन जाएंगे कोड, ठीक है। अब वहाबा से आप चाहे 100 टेबल बना लें, हम कहेंगे मेन बाब जो है फतहा है और वहाबा इसका कोड है, इतना लिख लें या पूरा वहाबा लिख लें। अब हम जब नौसरा मेन बाब, बाब जहां पर लिखा वहां आप लिखेंगे बाब नून है, और कौला के साथ आप जितने चाहे टेबल बनाते जाएं। आपने क्या करना है, आपने लिखना है कौला इसका कोड है, इसी तरह से दआ कोड बन जाएगा, इसी तरह से वादा कोड बन जाएगा, ज्यादा हदा। अब इसका फायदा ये होगा कि आपने एक एक टेबल याद करना है। जैसे हमने फतहा याद किया, नसरा, दौराबा, सामिया, एक टेबल याद किया। फतह के साथ हमने फ़अला भी सीख लिया, जाअला भी सीख लिया, नसरा के साथ आबादा, रज़ाका, खलका, बहुत सारे ढेर सारे। दौराबा हमने एक ही सीखा था, लेकिन अब आप देखिएगा जब आपके QC1 की बुक के एंड पे जहां पर आपके दौराबा के टेबल है वहां पे सौबारा होगा, ज्वालामा होगा, इस तरह से बहुत सारे होंगे। अब दौराबा से यदरिबु किया था तो ज्वालामा से यजलिमु होगा, स्वाबारा से यसबिरु होगा, तो ये फायदा हो जाता है, ठीक है। सामिया जैसे हाफिजा, इसी तरह से बहुत सारे आपको राहिमा टेबल मिलेंगे। अब उन सब का जो मुदारे होगा वो बिल्कुल सामिया यसमाऊ की तरह होगा, ठीक है। तो अब जो वहाबा से हमने बनाया यहब, अब इस तरह के जितने भी अफाल आप बनाते जाएं, आपको रूट लेटर दे दिए जाए कि आप इसको वहाबा पर ले आए। मेन बाब फतह होगा और कमजोर जो इसका पहला बाब होगा, यानी कि जो इसका कोड है वो वहाबा है। इससे क्या होगा, इससे आपको मदद मिलेगी। आप वहाबा का टेबल सामने रखें, हर जेर जबर पेश शद मद वही लगाएं, अंदर से सिर्फ आप उनके हरूफ को बदलते जाएं, तो आपका एग्जैक्ट बिल्कुल वहाबा जैसा टेबल पूरे पूरे वजन के साथ बन जाएगा, ठीक है। अब कौला में कमजोर हर्फ दरमियान में है, बीच में है। कौला उसने कहा,
قالا اس نے کہا، ہم بہت قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، قالا پڑھتے ہیں، قالو پڑھتے ہیں، ہم سب سے اہم جو ایک سیگا بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ہم جب پڑھتے ہیں، معوذتین پڑھتے ہیں، ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں قل، ٹھیک ہے، قل هو اللہ احد۔ اب قل کیا ہے؟ یہ ہے فعل امر، آج ہم دیکھ بھی لیں گے کہ یہ امر کیسے بنا، ٹھیک ہو گیا۔ اب قولا کے بعد ہمیں نظر آ رہا ہے قولو، بالکل جیسے ہم نے نوسارا سے کیا تھا نصارو، ٹھیک ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے، وہ ہے ہم نے جتنے بھی ٹیبل کیے تھے ہم نے یہاں پر ہمیشہ زبر پڑی تھی، ہم نے کہا تھا فتح فتح فتحتا فتحتو، ٹھیک ہے، نصرا نصرو نصرتا نصرتو، جو بھی ٹیبل آپ لیں آپ نے کوئی بھی یہاں پیش سے شروع نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آیا تھا جو ٹیبل بنانے کا طریقہ ہے نا، وہ لوگ زیادہ تر شروع کرتے ہیں اپنے روٹ لیٹر سے۔ اس صورت میں کیا تھا کہ روٹ لیٹرز پہلے ہمیں آتے ہوں گے تو پھر ہم ٹیبل بنائیں گے، ہم جس طرح سے کر رہے ہیں ہم دونوں چیزیں اکٹھی اکٹھی سیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کہا ہے کہ یہ جو ہے قاف واو اور لام، یہ ابھی ہم نے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ اس کو در اسپیس ہی سمجھ لیں گے، ابھی آپ کو نہیں پتا، آپ اس کی ایک چھوٹی سی نشانی بنا لیں کہ یہ واو ہے، دوستی اس کی جو ہے پیش کے ساتھ ہے، اوپر سے ہم نے اس کو ناسورا پہ سیٹ کرنا ہے، تو ناسارا کا ٹیبل ہوتا ہی ہمارا جو ہے وہ پیش پیش کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ایک چھوٹا سا جو آپ نے اس کو اپنے لیے بنا لیں، چابی اس کی بنا لیں، یا ایک اس کو اپنے لیے ہنٹ بنا لیں، وہ اگر آپ کو ذہن میں نہ آئے کہ میں نے اس کو کلتا کرنا تھا یا کلتا، تو آپ کل کہہ کے دیکھ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یاد آ جائے گا فٹافٹ کہ یہ ہم نے کلتا ہی پڑھنا ہے۔ اب قولا کی طرح کے جتنے بھی ٹیبل آپ بناتے جائیں، جتنے بھی ٹیبل بنائیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ قولا قولو کلتا کہنا ہے، آپ کو اس کے بعد سارے کے سارے ٹیبل اسی طرح یاد آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا، قلتا آپ نے کہا، قلتو میں نے کہا، قلتم آپ سب نے کہا، قلنا ہم سب نے کہا۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں مؤنث کیا بنے گی اس کی؟ قالت قالت، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں ہوتی نہیں ہے لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ بتا دیتے ہیں تو میں اس لیے پہلے ہی پوچھ لیتی ہوں۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ٹیبل یاد کرنا پڑے گا، قولا کا ٹیبل قلتو قلتا کے ساتھ یہ یاد کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب قولا کا ٹیبل آپ کو بہت اچھا سا یاد ہوگا تو آپ کوئی سا بھی ٹیبل دیکھیں گے کمزور والا، آپ اس کو اگر قولا پہ پورا پورا فٹ کریں گے تو آپ اس پہ کبھی بھی زبر نہیں لگائیں گے، آپ اس کو قلتا کی طرح پیش سے ہی شروع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، عربی بول چال کو ابھی آج کے لیے ہم سکپ کر دیتے ہیں، اب چلیں اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ حل قالا خیرن، سب جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ حل کیا، قالا اس نے کہا، خیرن خیر، اب اس کو ہم جو رواں ترجمہ بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں؟ کیا اس نے کہی خیر کی بات، تو کیا اس کا نعم جواب آئے گا؟ نعم قال قال خير. حل قالوا خیرن، کیا ان سب نے کہی خیر کی بات؟ نعم قالوا خير. خير حل قلت خیرن نعم قلت نعم خيرا قلت خيرا. قلتو، ٹھیک ہے۔ اس کو نے قلت قلتا خيرا قلتو قلتم قلنا، ٹھیک ہے۔ حل قلتم خیرن، نعم قلنا خيرا اچھا قلنا خيرا یہ جو قل نا ہے نا، اس کو تھوڑا ضرور لمبا کیا کریں، قلنا خيرا اس کو میں آپ کو نا ایک چھوٹی سی مثال یہاں بتا دیتی ہوں۔ آپ کہتے ہیں خلقنا، خلقنا، اس کا کیا معنی ہوا؟ خلقنا ہم نے پیدا کیا ہم نے پیدا کیا، ہم نے بنایا پیدا کیا، خلقنا خلقت، ٹھیک ہے۔ پیدا کیا خلقا پیدا کیا اب یہ پڑھنے میں کیسا ہے؟ یہ جو میں نے لکھا ہے خلقنا خلقنا، اس کا معنی ہے ان عورتوں نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ یہ کتنا فرق آیا معنی میں، صرف ایک یہ مد نہیں بنائی اور یہ اتنا فرق آ جاتا ہے، ایک آ جاتا ہے ہم نے پیدا کیا اور ایک آتا ہے ان عورتوں نے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت خیال رکھنا ہے، قلنا نہیں تو ہو جائے گا قلنا
उन قلنا औरतों ने कहा। ठीक है, इसको हमने जरूर कोशिश करके अपने इसमें लाना है। ये तजवीद का भी रूल है, और वैसे भी कहते हैं कि जो अरब है ना, अरब लोग, वो कभी इसमें गलती नहीं करेंगे। बल्कि आप उर्दू में देखें, आप कभी भी किताब को किताब नहीं कहेंगे। ठीक है, आप कभी भी जैसे किसी का नाम हो जाहिद नाम, जहद नहीं कहेंगे, आप उसमें जरूर एक मद बनाएंगे। तो इसी तरह से हमने इन मदूद का थोड़ा थोड़ा सा, नहीं भी तजवीद की क्लास तो कोई बात नहीं, हम इसका ख्याल रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है मुदारे की। माजी हमने सीख लिया, मुदारे के लिए जरूरी है हम इन अबवाब को देखें। अब सबसे पहले सामिया क्यों निकल गया? क्योंकि ये काइला नहीं था। ठीक है, अगर ये काइला होता तो हम बाकी सबको खत्म करते, सिर्फ और सिर्फ सामिया यस्माऊ की तरह बना लेते। ठीक है, अगर हम इसको फतहा पर लेके आते तो ये आता काला या कालू। अगर इसको नसरा पर लेके आए तो काला या कूलू। अगर इसको दोराबा पर लेके आए तो काला या कीलू। अब आपको ना आगे पढ़ते हुए अगले कोर्सेज में कुछ अल्फाज नजर भी आ जाएंगे मिलते जुलते, लेकिन जो यहाँ पर हमने अपना पहला टेबल कौला का, यानी कि जिसका मेन बाब है नौसौरा और कोड बनने वाला है कौला, उसे हमने करना है बाब नौसौरा के साथ। ठीक है, अलिफ को वाओ से बदल दिया बोलने में आसानी के लिए। ठीक है, अब जैसे ये कौला था तो इसका क्या बन जाना था? या कालू। ठीक है, लेकिन इसको बदल दिया गया यकूल। अच्छा, इसको दोबारा आपको ना ये बनाती यन शुरू की तरह, फिर समझ आएगी। अच्छा जी, यन शुरू में देखें, ये है या, नून, सो। काला जो है ये माजी है, यकालू ये मुदारे है ना। ये मुदारे है, लेकिन ये इस पर फिट नहीं होगा। ठीक है, इसको अभी हम यहाँ देखते हैं ना, ये जो मैं ऊपर लिख रही है ना, इसको गौर से देखें। ये मैंने लिखा अच्छा। है या, नून, ये पेश, और ये है यंसुरु। अब हमने इस पर जो हमारे रूट लेटर है ना, वो उसको फिट करना है। रूट लेटर के साथ ये आपको कोई भी शुरू में नहीं बताएगा, मैं इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सा साथ बता रही हूँ, ये हमने आगे जाके सीखना ही है। तो थोड़ा सा बस इसको सीख लिया करें, इसके बारे में आपसे ना क्विज में सवाल होगा ना आपके होमवर्क्स में, बस हम इसको देख लेते हैं। क्योंकि ये वाली स्लाइड अगर ना भी समझ में आए ना, तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, हमने इसको पूरे पूरे को फिट करना है। ये बन रहा है या, कॉफ, वाओ और लाम। ये इस तरह से यंसुरु पर पूरा किया गया है ना। ठीक है, अब इसको पढ़ के देखें, जैसे यंसुरु है, इसको पढ़ के देखें। कोई सिस्टर पढ़े इसको? कोई नहीं पढ़ना चाहता? कॉफ दोबारा की, बोलिए किसको पढ़ना है? हाँ, या के ऊपर जबर पढ़े या कॉफ के ऊपर जजम? शुरू यकूलु। यकूल यकवुलू नहीं बन रहा, ये यकवुलू। यकूलूना यकूल यकूलू एक मिनट, तकूलू एक मिनट, एक मिनट, अभी अभी तकूलूना आगे ना जाए। नकूलू प्लीज सिस्टर, अभी अभी आगे ना जाए, अभी आगे ना जाए। तकूलू। ठीक है, अभी वो आगे औरत ना जाए। कहती है ठीक है, देखें, ये बन रहा था यकवुलू। अब क्या किया कि ये जो कमजोर है इसको गिराया है, और ये जो हरकत थी ना, ये सेहतमंद को दे दी। वो कमजोर है ना, इसकी हरकत जो थी ना उसको दे दी गई। ठीक है, अब इसको गिराया नहीं है, सॉरी, इसको गिराया नहीं, बस इसकी हरकत पीछे कर दी गई है। यकूलू। ठीक है, यकूलू। अब ये हमारा यंसुरु की तरह आएगा कि इसको, ये जो हरकत है अदल बदल की गई, कमजोर को साकिन के नाम भी डालेंगे ना, तो ये मद बनी हुई है, कॉफ और इसके ऊपर पेश और इसके साथ वाओ। ठीक है, तो ये है यंसुरु की तरह। एक टेबल याद करेंगे, इसके साथ आगे सारे टेबल याद होते जाएंगे। यकूलू, यकूलूना, तकूलू, अकूलू, तकूलूना, नकूलू। यकूलू वो कहता है या कहेगा, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, और हिया क्या आ जाएगा? तकूलु। वो औरत कहती है। ठीक हो गया? अब ये मुदारे है। ठीक है, यकूलू एक चाबी हमारे हाथ लग गई। अब पूरा उसी की तरह से हमने यतान को इसके ऊपर फिट कर देना। यतान क्या है? या, ता, हमजा और बिना ये पढ़े नून। की। ठीक है, ये है अलामत मुदारे। अलामत मुदारे के साथ हमने इसको पूरा किया। ठीक है, बोलचाल को स्किप करते हैं, हम देखते हैं इसमें
अमर कैसे बनाएंगे? अच्छा जी, तकूलू अब आप लोग बनाएंगे, ठीक है? ड्रॉप कीजिए जरा, अलामत मुदारे को ड्रॉप किया, क्या बन गया? قول कौलू। ठीक है, अब हमने क्या करना है? कमजोर हर्फ गिराना है। अब क्या बन गया? قل أقول कुलू। अब करना है आखिरी को साकिन, قل कुल। قل ठीक है, आखिरी को साकिन करना है, क्योंकि आज जो हम अभी कर रहे हैं ना QC2, इसमें हमने इसी तरह से देखना है, ठीक है? क्योंकि ये कमजोर हुरूफ हैं, कमजोर हुक्म सुनते गायब हो गए। अब जैसे कुल में हमें वो जो, अगर मैं पूछूं हरफे मादा क्या है, तो हरफे मादा तो इसके काफ वाव लाम ही रहेंगे, ठीक है? वो नहीं बदलने, कॉफ वाव और लाम। लेकिन अमर में क्या हुआ कि ये भाग गया, ठीक है? इसको कहते हैं गायब हो जाते, जो हम बात करते हैं ना कि इतने कमजोर हैं कि ये गायब भी हो जाते हैं, ठीक है? कुल, अब इसको कुल्लू नहीं करना, ये बात जरूर याद रखनी, ये वापस भी आ जाते हैं। कुल, सॉरी, कुल कह कुलू, अब कुल्लू नहीं करना, ठीक है? एक टेबल याद करना है, एक टेबल का हर हर सीगा याद करना है। कुल, कुलू, ला तकुल, ला तकुलू, ठीक है? अगर इसको कुल की तरह बिल्कुल उसी तरह से जमा बनाएंगे तो फिर आपकी जमा गलत हो जाएगी। तो कुल, कुलू, ला तकुल, ला तकुलू, कुल, कुलू, ला तकुल, ला तकुलू। ठीक है, यहाँ पर ये वाली हमने वाव वापिस लानी है, नहीं तो फिर कुल्लू से कुछ और ही बन जाएगा, उसका तर्जुमा ठीक नहीं बनेगा। यहाँ पर हम कर लेते हैं बोलचाल। अब मैं कहती हूँ कुल कह, तो आपको क्या आंसर करना चाहिए? قال قول अकूलू, मैं कहता قال हूँ। अच्छा जी, कूलू, तुम सब कहो, क्या जवाब होना चाहिए? نقول नकूलू। نقول ठीक है, इसको नहीं भूलना, ठीक है? मुदारे में जवाब देना है, क्योंकि कूलू जो है ना, इसको आसान तरीके से समझें, जो हमारे सामने हो, ठीक है? हम उसी को कहेंगे ना, मैं जैसे आपको कह रही हूँ कि आप लोग पढ़ो, अब आप मुझे जवाब देंगे नकूलू, हम पढ़ते हैं, ठीक है? अब मैं किसी और को जो मुझे नजर नहीं आ रहा उसको तो हुक्म नहीं दे रही ना। अब मैं कह रही हूँ कुल खैरन, कहो अच्छी बात, आप क्या कहेंगे? قال قال अकूलू خيرا खैरन। और मैं أقول कहती हूँ अगर कूलू खैरन, نقول قال خيرا خير नकूलू खैरन, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया जी। अब मैं कह रही ला तकुल, मत कह, अब इसके आगे हम शर लगा सकते हैं, ला तकुल शर्रन, बुराई की बात मत कह, तो आप क्या कहेंगे? ला لا अकूलू। أقول उसके आगे शर्रन आप लगा सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब है हमारा ये जो हमजा ने जगह लेनी है ना, वो वाली बात आ गई। अच्छा जी, अब हमने बनाना है अपना इस्मुल फाइल। अब ये हमने बनाना है फाइलुन के वजन पे, फाइलुन। और अगर हम अपने रूट देखें, कॉफ वाव और लाम, इसमें अगर इसको फिट करें तो ये बन जाता है, क्योंकि इसमें था फा, आइन और लाम, ठीक है? बिल्कुल इसी की तरह बनाए तो ये बन जाता है कौ वी लुन। ठीक है, अब हमजा ने क्या किया? हमजा ने इस वाव को भगा दिया और इसकी जगह पर खुद आ गया। अब इसको लिखने का तरीका जो है ना, ये एक छोटी सी जो शोशा जिसको कहते हैं, या एक छोटी सी स्पेस सी होती है, इसके ऊपर हमजा को बिठाया जाता है, ठीक है? तो ये बन जाता है हमारा कौइलुन, ठीक है? कौइलुन ये इस्मुल फाइल है, इसकी कौइलतुन भी बन सकती है, कौइलूना, कौइलीना भी बन सकती है, इसको अल कौइलू भी किया जा सकता है। अस्मा है, अस्मा में ये सब कुछ किया जा सकता है। कौइलुन, मकूलुन, कौलुन, ठीक है? कौइलुन, मकूलुन, कौलुन। कौल हम उर्दू में देखते हैं ना, कौल किसको कहते हैं? be saying या सेइंग को, कोटेशन बात को, वगैरह ठीक है? एक हमने बहुत चीजें बहुत बार सब चीजें नहीं, अखबारें जहां हम पढ़ते होते थे, आप लोग भी पढ़ते ही होंगे यकीनन, एक जमाने में उसमें होता था अकवाले जर्री, होता था ना, तो ये कौल की जमा अकवाल है। एक आप सुनते हैं कव्वाल, कव्वाल क्या करता है? कव्वाल कवाली क्या, पढ़ते कवाली हम कवाली करता है ना, तो वो वाली कव्वाल, करते
वो शिद्दत से बार 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 रिपीट करता है ना, एक ही बात को कही जाता है कही जाता है कही जाता है, उसको कव्वाल कहते हैं। ठीक है। और मकूल, मकुल्ला, हम उर्दू में मकुल्ला यूज करते हैं, उसको याद रखिए। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हमें ऐसे भी याद हो जाती हैं। हमें अमर याद रहेगा कुल हुवल्लाहु अहद से। ठीक है। और कायल, कायल भी कहते हैं ना, उसने इस बात को, किसी को कायल कर लिया किसी काम के लिए, कायल कहने वाले ने मनवा ली अपनी बात। ठीक है। तो कायल कर लेना, मनवा लेना, कह कह कर मनवा लेना। काइलुन, मकूलुन, कौलुन। अरबी के बहुत सारे अल्फाज हम उर्दू में इसी तरह पढ़ते हैं। याद करने वाली जो चीजें हैं, एक तो पहली चीज जो हमने यहाँ पर चेंज पढ़ी है वह कुल तू, कुल तुम, कुलता, कुल तू, कुल तुम, कुलना। ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली आई। मुदारे को हमने काला यकूलू, ठीक है, यकूलू। अब जितने भी टेबल आ जाए काला जैसे, यकूलू की तरह ही मुदारा, उसका मुदारे बनेगा। कुल को हमने ऐसे याद कर लिया। ला तकुल को याद करना पड़ेगा। ला तकुल, ला तकुल, ये वही वाला जो सामने वाला तकुलू है उसी से तकुल बन गया। ठीक है। मत कह, तू मत कह, फिर ला तकुलू। अब इसको मजीद हमने QC4 में भी समझ लेना है कि ये जो थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हैं, ये जो गायब होने वाली वापस आने वाली, इसको हम मजीद समझ लेंगे। ठीक है। हमारा यहाँ पर टेबल पूरा हुआ। हल अंता क़ाइलुन, क्या आप कहने वाले हैं? नअम अना क़ाइलुन। क़ाइलुन। अच्छा जी, हल अंतुम क़ाइलूना। नअम नहनु क़ाइलूना। अच्छा जी। अब कोई एक सिस्टर, तीन सिस्टर आए, एक नहीं तीन सिस्टर आए, सबने मिलके टेबल पढ़ना है। मैं नाम लिखती हूँ उनके। अच्छा जी, सिस्टर मदीहा, एक सिस्टर और आ जाए प्लीज। सिस्टर सिद्रा, एक और आ जाए, शर्माई मत। मैं आ जाऊं? आयशा आयशा मुझे शर्म नहीं आ रही, मैं आ जाऊं? अच्छा। आयशा, मैं भी कहा, आप मेरा इससे नहीं तो खुला हुआ देखा। ये कौन सी सिस्टर बोल रही है? आयशा। आयशा, चलें सिस्टर आयशा का नाम लिख लेते हैं। अच्छा जी, सिस्टर मदीहा करेंगी माजी, और सिस्टर सिद्रा आप करेंगी मुदारे। सिस्टर आयशा आपने फेल अमर से शुरू करना है। ठीक है, शुरू हो जी। जाइए। ठीक है, तर्जुमा पढ़ना है? पढ़ लें। ठीक है। कौला उसने कहा, कौलू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुलतू मैंने कहा, कुल तुम आप सब ने कहा, कुलना हम सब ने कहा, कौलत उस औरत ने कहा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकिल्लाह खैर सिस्टर। यकूलू वो कहता है या वो कहेगा, यकूलूना वो सब कहते हैं, तकूलू आप कहते हैं, अकूलू मैं कहता हूँ, तकूलूना आप सब कहते हैं, नकूलू हम सब कहते हैं, तकूलू वो औरत कहती है। ठीक हो गया जी। सिस्टर आयशा आ जाइए। जी। कुल कह, कुलू कहो, ला तकुल मत कह, ला तकुलू मत कहो, कायलुन कहने वाला, मकूलुन जो कहा गया, कौलुन कहना। कहना, अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर आपको एक टिप दूं छोटी सी। आपने क्या करना है, आपने कुरान पाक का कोई सा एक पेज लेके ना, जहां पर भी ये मद आए ना, वाव वाली मद, उसको अंडरलाइन कर लें। फिर उसको आप बोल के देखें, कूलू। ठीक है। उससे क्या होगा, आपको 2 काउंट इसको लंबा करना है मद को। आपका इंशाल्लाह कुरान का पेज भी वो बेहतरीन पढ़ा जाएगा, 1 2 3 पेजेस पे। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करके पढ़ेंगी तो इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। सिस्टर हफ्सा को भी कुछ कहना है? जी, मैंने कहना था कि हम लोगों का कल से इंशाल्लाह तजवीद का बैच भी शुरू हो रहा है। जी अगर कोई जी जी सिस्टर जी ज्वाइन बिल्कुल। करना चाहे तो बिल्कुल वो भी कर सकती हैं। ठीक है, आप लोग ना अपने ग्रुप में बता दीजिएगा। कल हमने सुबह इंशाल्लाह 10 बजे अपनी तजवीद की क्लास भी शुरू करनी है। जो लोग आना चाहें मोस्ट वेलकम, अपना नाम ग्रुप में डाल दीजिए, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ठीक है, वो 10 बजे से क्लास हुआ करेगी। रखा तो हमने कोशिश तो यही करनी कि 1 घंटे में हो जाए, वैसे हम 1.5 घंटा उसका रखते हैं, क्योंकि जैसे जैसे सबक आगे बढ़ता है ना, थोड़ा टाइम फिर ज्यादा चाहिए होता है। हमने इसमें नूरानी कायदा पढ़ाना है, और हमने अम्मा पारा पढ़ाना। जो हिफ्स करना चाहेंगे वो हम थोड़ा अरसा बाद उसको शुरू करेंगे, कि जो हिफ्स करने वाले वो अपना लेसन सुनाया करेंगे। जो सूरतें आपको हिफ्स हैं पहले से अच्छी तरह से, उन पर, बल्कि उन पर ही आपको तवज्जो ज्यादा करनी पड़नी है। ठीक है। सिस्टर नाजिया ने हैंड रेज किया। जी सिस्टर नाजिया। जी मैं पूछना चाह रही थी, तजवीद का जो है उसके लिए किताबें लेने पड़ेंगी कि नहीं आप?
وہ آپ کو پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں، یا پھر آپ کو عربی مصحف لینا پڑے گا، لے لیں، یا پھر ہم ایک کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ 30ویں پارے کا PDF شیئر کر دیں، اس کو پھر آپ پرنٹ کرا لیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ مصحف نہیں اچھا خریدتے تو آپ اس پارے کو میم، پرنٹ کروا لیں۔ تو پھر میرا نام بھی اس میں ایڈ کر دیجیے گا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے ہم نے اپنے گروپ میں اگر کوئی مصحف خریدنا چاہتا ہے تو ہم ان بھائی کا نام بھی اس میں ڈال دیں گے جہاں سے ہم لوگ آن لائن لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ اپنے قریبی سٹورز میں سے اچھا بھی تو دیکھ میم سکتے ہیں پھر۔ کب شروع ہو رہی ہے اور کس ٹائمنگ کیا ہے؟ ٹائمنگ اس کی انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا یہ جسٹ کیجول کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ کے ٹھیک ہے ساتھ میم۔ شیئر کر دیا جائے میں پوسٹ ٹھیک کر ہے؟ وہ دیتی ہوں گروپس میں، ٹھیک سسٹر ہے؟ آپ سب پوسٹ کرتی ہیں، پھر آپ اچھا تفصیل میم۔ دیکھ لیجیے گا۔ اچھا جی، 6 چابیاں سسٹر نازیہ آپ ہی پڑھیں ذرا، آپ کا مائک آن تھا، آپ ذرا 6 چابیاں پڑھ لیں۔ سسٹر نازیہ دوبارہ سے آن کریں اپنا مائک اور پڑھیے گا۔ جی میم، جی پڑھیے، قالا سے پڑھیے۔ پڑھ لوں میم؟ جی پڑھیں پڑھیں، 6 چابیاں، افعال۔ یہ 6 چابیاں پڑھنی ہیں۔ اچھا سسٹر آپ سسٹر نصریہ ہے؟ جی جی، میں نسریہ ہوں۔ اچھا تو یہ آپ کا نام نازیہ کیوں آ رہا ہے؟ میں یہ دیکھ رہی تھی۔ اس میں آئی ڈی ہے میم، اسی اچھا وجہ اچھا، سے۔ ٹھیک ٹھیک ہو گیا۔ آپ قالا یا جی، قولو کل یہ 6 چابیاں پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال یقول قل قائل مقول قول۔ قول، الحمدللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا جی، یہ ہمارا آ گیا پیج، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کیسے دیکھنا ہے؟ آسان طریقے سے۔ وہ آسان طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے افعال کو الگ کر لیں گے۔ تم سب کہو، ٹھیک ہے؟ حکم دیا جا رہا ہے، تم سب کہو، کیا عربی بنائیں گے ہم اس کی؟ قولوا تقول کل، قولو۔ ہم، اچھا، لوگوں سے اچھی بات، قولو للناسی، چلے میں الناس آپ کی تھوڑی سی ہیلپ کر دیتی ہوں، للناسی خیرن، خیرن، الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ لوگوں کے لیے یا لوگوں سے، دونوں مطلب اس کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آگے ہے انا، انا کا کیا معنی پڑا؟ ان اللہ مع بے الصابرین شک، سے، بے 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 شک، 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 ہاں جی، اللہ زینا کا تو ابھی ہم قولوا پڑھ کے آئے ہیں، وہ لوگ جو، لوگ، قالو کہتے ہیں، ہاں انہوں نے کہا، ماضی ہے، جی سوری، ہاں، رب ربنا اللہ، ہمارا رب ہمارا ہے رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہے جو ہے نا، یہ یہاں چھپا ہوا ہوتا ہے، یہاں کہیں چھپا ہوتا ہے، ربنا اللہ۔ اچھا، عربی میں جواب دیں ہاں میں، حل قلتم خیرن، نعم قلنا خیرن، قلنا خیرن، الحمدللہ، تو آپ نے بہت آسانی سے بنا لیا۔ اچھا جی، اب میں اس کی نا جو مین مین چابیاں آپ کو لکھ کے بتاتی ہوں۔ تابا، ٹھیک ہے؟ تابا، اور اس کا یقولو کی طرح کیا بنا لیں گے؟ قال یقولو تابا یتوبو، یتوبو، الحمدللہ۔ ہم نے کہا تھا قل، تو یہاں کیا کہیں گے؟ تب، توب، تب، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے لا تقل، لا لا تتب، تب، لا، تا تا، ہاں ہاں، تا اور تب، 2 دفعہ تا آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور جیسے قائل ہے، توبہ طائب تائبن، کرنے، ہاں جی، تائبن، ہاں، اور جیسے مقولن تھا، مدعون، موتوبن، اور اس کا دیکھیں مصدر چینج ہو گیا، توباتن، توبہ کرتے ہیں نا ہم، توبہ، یہ وہیں سے نکلا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایک سسٹر یہ والا ٹیبل بنا لے، پھر ہم چھٹی کرتے ہیں۔ کوئی سی ایک سسٹر بنا لیں، جو سب سے تابا، پہلے آگے وہ بنا لیں۔ تابو، تابا، تابو، تبت، ہم نے کہا کلتا، تبتو، ایک منٹ تبت، ایک منٹ، ہم نے کہا تھا کلتا، اب کیا بنائیں گے؟ تبتا، تبتا، الحمدللہ، ایکسیلنٹ سسٹر، تبتا، تبتو، تبنا، تب تم رہ گیا، تب تم ہاں نہیں، جی، تم سب سے توبہ تبتو، نہیں کرانی، آپ سب نے توبہ کی، جی، ٹھیک ہے؟ اچھا تبتم، چلے، یتوبو، یتوبونا،
अतूबु नहीं, पहले ततूबू नहीं, आप देखें जरा, आप खुद तौबा करी जा रही, दूसरों से नहीं करा रही। ठीक है, ततूबू भी तो कराए ना। ततूबु, अतूबु, ततूबूना, नतूबु, उस औरत से भी करा हिय दी। तुब, हिया हिय ततूबू। ततूबु, ठीक है, एक जो हिय मुदारे की ततूबु। अलामत है वो आनी है, बाकी रूट लेटर जो है वो उसका हिस्सा ही है। अच्छा, जो कौला के रूट लेटर है कॉफ वाउ लाम, तो ताबा के क्या होंगे? ताबाओ बा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, रूट लेटर भी ऐसे ही हैं, जैसे हम इसको कौल से याद रख सकते हैं, तौबा को। इसमें माफूल क्या आएगा? जी, इसमें माफूल क्या आएगा? मफऊल, मफऊलुन, मतबूबुन, तो वू का जो है वो खत्म कर देंगे मफऊलुन की तरह, मतूबुन। ठीक है, ताइबुन, मतूबुन। सिस्टर आप कंटिन्यू करें तुब से। तुब, ल- ला तुबतु, आपको ना भूख लगी है, आप थोड़े थोड़े से खा रही हैं। ठीक है, तूबू, तुब, तूबू, ला ततुब, ला ला तत, ततूबू। मुश्किल हो रहा है बोलना ना कोई इनको। बात नहीं, कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, ये आपकी बड़ी अचीवमेंट है, ये आपकी कामयाबी कि आपने कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि ये ते सबके ते दो सामने दफा कर आ रहा है लेना ना। भी एक काम है। हम्म। ठीक है जी जी, किसी सिस्टर ने कुछ बोला? तो ते दो दफा आ रहा है ना, वो भी हाँ जरा बिल्कुल बिल्कुल, मुश्किल लग और रहा है। इसको, अच्छा अब आप अरबी पढ़ते हैं ना, मुसफ समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप इसको ते ना कहा करें, जितनी भी बे पे ते जो भी ता, थे ना सारे हाँ ए वाले, उसको आप ले आए आ वाले पे। ठीक है, हाँ त, ब, जी। त, स। ठीक है, इसको इस तरह से पढ़ा करें, आसानी हो जाएगी। ताबा, ताबू, तुब ता, तुब तू, तुब तुम, तुब ना, ताबत। यतूबु, यतूबूना, ततूबु, अतूबु, ततूबूना, नतूबु, हिया ततूबु, तुब तूबू, ला ततुब, ला ततूबू, ताइबुन, मतूबुन, तौबतन। ठीक है, तौबतुन एंड पे जरूर लगा लिया करें तनवीन, ताकि हमें याद हो जाए। अच्छा, क्लास हम आज खत्म करते हैं, दोबारा नहीं आना। ठीक है, आज की क्लास कंप्लीट हुई, अजान शुरू हो गई, मैं भी नमाज पढ़ती हूँ, आप भी नमाज पढ़ें, दुआ करते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो ग्रुप में कर लीजिएगा। ठीक है, जब क्लास थोड़ी लेट हुआ करेगी तो फिर हम 10 मिनट की ब्रेक कर लिया करेंगे। ऐ अल्लाह में कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि अस्सलाम व व बरकातहू। वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मैडम 2 क्लासों के बाद होमवर्क आएगा। हाँ जी, अब इंशाल्लाह आ जाएगा आपको बुध वाले दिन। ठीक है, तो मैडम मुझे ना बस सिर्फ होमवर्क करवाना है, जिस साथी ने भी मेरे साथ आना है ना, हाँ समझा जी, के 1-2 होमवर्क करा दें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आ रही है, आज काफी समझ आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर मदीहा ने कहा था सबसे पहले, और वो जी आपसे रब्ता इंशाल्लाह। कर लेंगी। ठीक है, मैंने इनको नंबर आपका मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया था। ठीक है, ओके जी, अल्लाह बहुत हाफिज।